الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق الله العظيम। अब मैं मौजूदाना गुजारिश करना चाहूँगी मोहतरम जनाब कौंसल जनरल को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मुराद अली वज़ीर साहब। Very honorable Spanish friends, प्यारे हमवतनों, अजीज साथियों, ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। First is the speeches and the messages of our leadership, political leadership was read out to you on the occasion of 23rd March. The significance of the day is, this day is important in the history of Pakistan because after 200 years of efforts, this was the day that the Muslim has finally decided in 1940 that we want a separate homeland for the Muslim of subcontinent. So we tried many things. The Muslim League, All India Muslim League, under the leadership of Quaid-e-Azam and many others, Sir Salimullah, from since the creation of Muslim League in 2006 in Dhaka, Sir Sayyid Ahmad Khan and all these leaders, they have just tried to sort out their existence and to live in a united India, but they could see it that they could not reach a solution. That what will be the next, because the fear of the Muslim of subcontinent was the brute majority. So what they said that the Muslims, for example, now if you will just imagine, for example, 250 million Pakistanis and 250 million around same number of Bangladeshi. So there are around 500 million Muslims and the same number of living in India, around 200 million Muslims are living in India as well. So the Muslims' demand at that time was that the Muslim who constituted around 40% of the subcontinent is not a minority at any cost. So they needed a proper power sharing and political sharing, and the struggle and the movement was there for 200 years. But when they reached, they saw that no, the other side of the story is that they just want to decide everything on the basis of brute majority, and Muslims could not survive and live, and that's the fact. So today is the day when the Muslims of subcontinent are India, and then India means the subcontinent, which was 800 years back, from almost 800 years Muslim ruled India, and it included Afghanistan, it included Burma, it included Bangladesh. So this was the whole subcontinent, we call it subcontinent. So that's why the Muslims decided today and reached that we should have a separate homeland for all the Muslims of India under the British Raj or without the British rule. So this is the importance, and that the way that it gives a direction to the Muslims. So this was just a historical significance that I wanted to highlight for our Spanish friends. Aziz Ahmadno, मेरे प्यारे साथी, यकीनन आपने हमारी मैसेजेस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और DPM डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर सागराज साहब के मैसेजेस सुन लिए,
कि पाकिस्तान एक यकीनन आपको महसूस होगा और आप देख रहे हैं कि वी आर पासिंग थ्रू क्रिटिकल जंक्शन। यहाँ पे फिर हमें दहशतगर्दी का नासूर सर उठा रहा है और मेरे ख्याल में अभी जितनी हमें इत्तेहाद, इत्तेफाक और यगानगत की ज़रूरत है, शायद ये तारीख ही किसी वक्त में हो। हर मतलब एक मुल्क के कोने कोने में मतलब इंतशार फैला हुआ है, आग लगी हुई, और हमें चाहिए कि हम सब मिलकर एक पाकिस्तानी की हैसियत से, एक कौम की हैसियत से, एक जान की हैसियत से, कलम की हैसियत से एकजा होकर अपने मुल्क और कौम के लिए जो है ना, जो भी हो हमसे हो सके हम करेंगे और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। तो एक और जो इम्पोर्टेंट मैसेज है कि यहाँ पे हमारे के साथ कुछ ऐसे मामला हुए हैं पिछले 1-2 महीने में कि वो नाखुशगवार थे। तो हमारी कोशिश है कि उन इस तरह के मामलात से अपने आप को दूर रखें। खा वो गैंगस्टर्स हैं, गैंग वॉर्स हैं, एक दूसरे का मर्डर्स करना है, तो मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन है। पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस तरह स्पेनिश लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मैं अपनी कम्युनिटी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है ना ऐसे काम ना करें जो आपको मुश्किल में डाल सके, हमारे लिए बदनामी का मुश्किल का सबब बने, मुल्क के लिए मुश्किल बने। और सियासत कर भी है तो हमने देखो ये पेपे वाले हमारे पास हैं, सोशलिस्ट वाले हमारे पास हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं स्पेनिश के, जिनके दरवाजे आपके लिए ओपन हैं, उनके लिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। आप इनको ज्वाइन करें, आप उनके साथ उठे बैठे। आप हमारे लिए जो है ना, सरदार साहब हमारे पास बैठे हुए हैं, तो ये हाफिज साहब है, हाफिज साहब जो है ना हमारे लिए एक ब्रिज की हैसियत रखते हैं। ये हमारे लिए जो है ना एक दिस इज द ओनली मैन होम वी कैन जस्ट कम्युनिकेट। मतलब अफसोस की बात है, इतनी बड़ी कम्युनिटी है मेरी, हमें तो इस तरह के कम से कम 100 आदमी चाहिए होते, हमें पार्लियामेंट में बंदे चाहिए होते, हमारे लिए आसानी नहीं है। तो मेरा ये मैसेज है आप लोगों के लिए, आप अपने बच्चों को इनकी सियासत का हिस्सा बनाएं, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज का हिस्सा बने, तो ये हम सब के लिए आसानियां पैदा करेंगे, मुल्क के लिए आसानियां पैदा करेंगे। और हो सकता है आप में से, आपके आला औलाद में से कोई बंदा MNA MPA बन के यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में पहुंच जाए, यहाँ पे मिनिस्टर बन जाए, तो इससे हमारी खुशनसीबी होगी, मुल्क का नाम रोशन होगा। और यकीनन इकबाल साहब हैं, जिस तरह हैं ताहिर रफ़ी हैं, ये सारे वो लोग हैं जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिकली हाईली एक्टिव लोग हैं और ये इनकी सियासत में एक्टिव है। मतलब खुशी की बात यह है, बाकी सियासत तो हम करते रहते हैं, पाकिस्तान की हर पॉलिटिकल पार्टी की अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह ये लोग हैं, आप इनकी सियासत का हिस्सा बन के मुल्क और कौम का नाम रोशन करें, ये मेरा एक मैसेज था। और दूसरा, हर साल की तरह मैं चाहता हूँ कि आप मैं अपनी लास्ट ईयर हमने कितना काम किया है, वट वी डिलीवर्ड इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर आर्ट्स। एक चीज़, वेस्टर्न यूरोप में जो मेरा मिशन है, जो मेरा कॉन्सुलेट है, ये सबसे मेन पावर के लिहाज से सबसे छोटा कॉन्सुलेट है। मतलब प्रैक्टिकली वन मैन मिशन है। एक कौंसल जनरल है, वो हेड ऑफ चांसलरी भी है, वो फाइनेंस भी देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखता है। बाकी अगर आप देखें, फ्रांस है, इटली है, मिलान है, अगर आप उधर देखें तो आपको अफसरों की लाइन लगेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा जो डिलीवरी है, जो सर्विसेज हैं, वो इस कॉन्सुलेट के हैं, विच इज़ अनमेजर्ड। और इसके लिए हमने पहली जो मेरी कोशिश थी कि 2 साल पहले, आज से एग्जैक्टली 2 साल पहले जब मैंने इस कॉन्सुलेट को ज्वाइन किया था, तो मेरे बहुत सारे साथी इस बात की गवाही देंगे कि यहाँ पे एक आग लगी हुई थी, मतलब कम्युनिटी डिवाइडेड थी, कॉन्सुलेट मतलब एक इस हंगामे में फंसी हुई थी। तो मेरी एक ही कोशिश थी कि मैं नहीं चाहता कि मेरे कॉन्सुलेट पे जो है ना, जो टेबल टॉक्स हो, जहाँ पे खुद वर्मा की डिस्कशन हो, तो कॉन्सुलेट पे ना हो, किसी और चीज़ पर हो, कॉन्सुलेट पर ना हो। तो 2 साल में मैंने कोशिश की कि हम ऐसा कोई काम ना करें जो आप लोगों के लिए कोई बायस शर्म हो, या आप लोगों के लिए कोई जो है ना इस तरह का काम करे। तो 2 साल में ये दिस वॉज माई प्रायोरिटी। हम मीडिया से दूर रहें, कोई सोशल मीडिया भी नहीं, हमारा कोई फेवरेट नहीं है, सारे हमारे भाई हैं, और ना कोई ग्रुप है, ना कोई डिवीजन है कि मेरा वो मुझे ज़्यादा अजीज़ है और ये मुझे कम अजीज़ है। कोशिश की है कि सबको साथ लेकर चलूँ, अब वो चौधरी हैं, वो गोंदल है, जितने भी ग्रुप्स हैं, बिजनेसमैन है, लेबर हैं, टैक्सीज है, मेरी ये कोशिश है कि हम सबको एक साथ होके, एक जान होके, मैं अगर ये इम्प्लीमेंट करूँगा अपने ऊपर, तो आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपने डिवीजन और तकसीम को ख़त्म कर दें। 2 सालों में सबसे पहली जो मेरा पॉलिसी था, मेरी ओपन डोर पॉलिसी है। कोई बंदा किसी वक्त, यहाँ पे बहुत सारे मेरे साथी आए बैठे हुए हैं,
जब भी आप आएँ, यू कैन, अगर मैं किसी के साथ मीटिंग में मसरूफ नहीं हूँ तो यू जस्ट नॉक इन, आप मेरे पास आ सकते हैं। आप कॉन्सुलेट में अगर मैं एक्सेसिबल हूँ तो आप लोगों के काम की आसानी हो जाएगी। इसी तरह हमारे फेसबुक पेज हैं, आप देखो इसमें तकरीबन 32-33 हज़ार हमारे एक्टिव फॉलोअर्स हैं। हम हर देख ले हमारा, आप कंपेयर करें किसी भी कॉन्सुलेट के साथ हमारा फेसबुक आप कंपेयर करें, हम हर सवाल का जवाब देते हैं। आप जो भी कमेंट्स आप लिखेंगे, जिस तरह भी लिखेंगे, हम कोई कमेंट्स आपके हाइड नहीं करते, हम आपको कोशिश करें कि जवाब दे सकें और जवाब देते हैं। अभी भी आप चेक कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल में मेरी पर्सनल एक एफर्ट्स है कि हम किसी कमेंट को अनरिस्पॉन्सिव नहीं जाने देते हैं। आपको जवाब देते हैं और कोई भी मिशन, कोई भी इदारा इस तरह के कमेंट्स ओपन नहीं कर सकता जिस तरह हमने कमेंट्स ओपन किए और आपको जवाब दे भी है। तो एक तो हमारी ओपन पॉलिसी थी, एक्सट्रीमली एक्सेसिबल है, 24 आवर्स हम अवेलेबल हैं, हमारे इमरजेंसी नंबर्स अवेलेबल हैं। हमने कभी ये नहीं देखा कि आप पाकिस्तानी हैं या स्पेनिश हैं, आपके पास जो भी नेशनलिटी है। पिछले दिन हमारा इधर एक साथी फौत हुआ था, वो स्पेनिश नेशनल, हमने इनको सपोर्ट किया, हमने इनको असिस्ट किया, हमने हालांकि बिकॉज ही वॉज अ पाकिस्तानी ओरिजिनली, तो हमने उनकी डेड बॉडी रिपेट्रिएशन में कम्युनिटी से चंदा करके उनको सपोर्ट किया है और उनको भेजा है। तो मेरे लिए जितने भी स्पेनिश पाकिस्तानी है वो उतने ही अजीज है जितना कोई भी पाकिस्तानी मेरे लिए अजीज हो। हम कोई तफरका नहीं करते, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते, बल्कि ये जो लोग हैं जो स्पेनिश पाकिस्तानी है, ये मेरा सासा है, ये मेरे मुल्क का जो है ना बहुत अहम सरमाया है। तो लास्ट एक साल में हमने तकरीबन 42,949 लोगों को सर्विस प्रोवाइड की। ठीक है, और आप एवरेज निकालें कि पर डे उसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि पिछले दिनों जितना रिनंसिएशन का जो शोर हुआ है ना, हमारे दोस्त जर्नलिस्ट बेग साहब, उन्होंने कोई एक वीडियो की, उसका असर हमारे ऊपर बहुत बुरा पड़ा। और आप यकीन करें पिछले 3 महीनों में या 4 महीनों में हम रोज़ाना 10 बजे 11 बजे जाते हैं लोगों का रिनंसिएशन प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि लोग बैठे हुए थे कि शायद हमारा ड्यूअल एग्रीमेंट हो जाएगा, तो दे वर होल्डिंग बोथ द नेशनलिटीज। तो हमने पिछले तकरीबन 1500 के करीब रिनंसिएशन सर्टिफिकेट इशू किए हैं पिछले 3 महीनों में। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, एक अचीवमेंट हमारी। और इसी तरह जो केसेस हमने फॉरवर्ड किए, तकरीबन 1700 के करीब केसेस हमने डीजी क्वार्टर डीजी पास को फॉरवर्ड किए हैं फॉर इशूएंस ऑफ सर्टिफिकेट्स। और हमने तकरीबन 13,150 के करीब अटेस्टेशन किए हैं और तकरीबन 250 के करीब हमने, ये पिछले एक साल में हमारी कारकर्दगी है, 250 के करीब हमने इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट इशू किए हैं। इसी तरह नंबर ऑफ पासपोर्ट तकरीबन 15,000 के करीब हमने पासपोर्ट इशू किए थे और पिछले एक साल में। और इसी तरह ऑनलाइन पासपोर्ट जो लोग इधर उधर से जमा कर ले, तकरीबन 2700 के करीब हमने वो डिलीवर कर दिए लोगों को। तो इसी तरह डेड बॉडीज पिछले एक साल में तकरीबन हमारे 93 पाकिस्तानी की डेड बॉडीज की एनओसी हमने इशू की हैं, जो पाकिस्तान को हमने रिपेट्रिएट किए हैं, उनको असिस्ट किया है। और ये वो पाकिस्तानी नहीं है जो इधर दफनाए जाते हैं या इधर इसकी मतलब सेरेमनी होती है, वो अलहदा है। तो एक जो खौफनाक ट्रेंड है कि इस डेथ के जो फौजी के उसमें बहुत नौजवान शामिल है, यंग लोग शामिल है, 19 साल के लोग भी शामिल हैं, और एक बंदा है जो 70+ के करीब था, बाकी सारे जो है ना 49 के नीचे है। उसका एक ही रीज़न है, टेंशन है, मजदूरी है, मसले मसाइल हैं, हमारा खुराक है, एक्सरसाइज ना करने की वजूहत है। तो आप सबसे गुजारिश है कि अपनी सेहत का ख्याल रखिए, मौत किसी वक्त भी आ सकती है। और दूसरा मेरा एक अहम मैसेज ये है कि जब भी मौत आती है तो हमारे जाहिर बात है किसी को किसी वक्त भी आ सकती है, इंश्योरेंस ज़रूर कर दें, किसी डेथ कमेटी में अपने आप को ज़रूर रजिस्टर कर दें। और वो डेथ कमेटी मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता, सबको पता है कि इकबाल साहब के पास मिनहाजुल कुरान की सबसे ऑर्गेनाइज डेथ कमेटी है, इसी तरह तंजीम इस्लामी की एक डेथ कमेटी है जो उधर मदनी मस्जिद है, उसकी भी डेथ कमेटी है। मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए तकरीबन हर डेथ कमेटी हर मोहल्ले के यूनियन काउंसिल के लेवल पे, पिंड के लेवल पे लोगों ने, बरादरी के लेवल पे बनाई हुई है। तो आप प्लीज़ अपने आप को, अपने साथियों को ये मेरा पैगाम ज़रूर भेज दें कि जिस वक्त आपकी फौतगी होती है, आपको मसले मसाइल आते हैं, तो अगर ये 30-35 यूरो सालाना आपकी इंश्योरेंस होती है और डेथ कमेटी आपकी बन सकती है, तो अपने आप को ज़रूर रजिस्टर करते हैं। किसी के साथ भी आप रजिस्टर करें, लेकिन प्लीज़ डू रजिस्टर योरसेल्फ। और ये पैगाम दें अपने लोगों को कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, और आपने इधर अगर नहीं दफन होना और आपने उधर ही लेकर जाना है, तो प्लीज़ रजिस्टर योरसेल्फ। तो सिर्फ ये एक छोटा सा मतलब एक फिगर है जो 93 लोग हैं,
इसमें वो लोग शामिल नहीं है जो इन लोगों ने दफनाया, तो तकरीबन 200 के करीब है। तो ये बढ़ेगा, अब कम्युनिटी एज ज़्यादा हो रही है, लोगों की उम्रें बढ़ रही हैं जिसकी 450 साल से, तो इसे नेचुरल फिनोमेना। तो आप लोगों से हम कोशिश कर रहे हैं फेडरेशन के साथ मिलकर कि हमें कोई ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए या हम कोई कब्रिस्तान बना सके जिसमें हम अपने आप को इस्लामी तरीके से दफना सकें, जिस पे खर्चा कम हो, क्योंकि यहाँ पे एक बॉक्स पे जो मैक्सिमम खर्चा आता है वो 1800 के करीब 1000 के यूरो एक बॉक्स का खर्चा है। हमने कोशिश की थी, ये सरदार साहब मौजूद है फेडरेशन के जो पिछले सदर थे, उनके साथ मिलके हमने अटीमा वालों के साथ पंद्रेरिया है इनके साथ एग्रीमेंट किया था। मुझे ये बड़ा मतलब पर्सनली अच्छा लगा, इसलिए कि ये तकरीबन 1800 2400-2500 में आपका वो करा देते हैं। हमने इसका वो लगाया हुआ, अगर इससे कोई और सस्ता हो सकता है, कोई और किसी का है कि मेरा पंद्रेरिया इससे ज़्यादा सस्ता कर सकता है आपको, तो आप बेशक वो इधर आके अपना वो बैनर लगा लेंगे। इसका ये है कि आप इनको फ़ोन करें, एक फ़ोन से वो आपके एनओसी कोर्ट के सारी चीज़ें ये करेगा, बॉक्स तक आपको बॉक्स आपकी डेड बॉडी को जनाजे से लेकर जनाजगाह से घर से उठाएगा, जनाजा करवाएगा, अस्पताल के छोड़ के आएगा। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा, अगर इससे अच्छी कंपनी आप लोगों की नज़र में है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह करके इसी तरह हमने तकरीबन 7000 के करीब हमने सिर्फ फैमिली भी, तो इसका मतलब है हमारी आबादी बढ़ रही है। और आपसे उस दिन भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ अपने लिए फैमिली वीज़े ज़रूर जल्दी अप्लाई करें। अगर आपका POC नहीं बना, रीज़न ये है कि इमरजेंसी का कोई पता नहीं होता, इमरजेंसी का कोई पता नहीं होता। फिर आप 11th आवर पे फ़ोन करते हैं, बंदा एयरपोर्ट पर बैठा है, सर जी वीज़ा चाहिए, उसका वालिद की डेथ हुई है। जब हम अगले से चेक करते हैं तो फैमिली वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा प्रायर अप्रूवल अप्लाई ना करे, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के उस पर होता है, उन्होंने आपको इशू करना होता है। यूर अ फैमिली मैन, तो प्लीज़ 5 साल का वीज़ा मिलता है, 1 ईयर हम उनका आपको स्टे देते हैं, मल्टीपल एंट्री है, तो गेट वीज़ा एज अर्ली एज पॉसिबल। ये आपके और आपके ख़ानदान की सिक्योर, या तो पाकिस्तान आपने नहीं जाना, ये इमरजेंसी से रिक्वेस्ट करना, कभी आप इकबाल साहब को रिक्वेस्ट करते हैं, कभी मुझे किसी को, तो कभी हाफिज साहब को रिक्वेस्ट कर लेते हो, शाम का वक्त होता है तो लोगों को बुलाना पड़ता है, हमें भी मुश्किल होती है, वीकेंड होती है, छुट्टियाँ होती है। तो प्लीज़ ये भी मेरा मैसेज है आपकी कम्युनिटी के लिए। तो 10,000 तो तकरीबन ये सब मिला के कोई 43,000 के करीब हमने लोगों को सर्विस दी है। इसके अलावा ये जो बिजनेस डेलीगेशन को हम डील करते हैं, इसका प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ देते हैं, हम अस्पताल में जाते हैं, और जो मैं अफ्तारिया अटेंड करता हूँ ये भी एक ड्यूटी है। और आप यकीन करें अफ्तारी के वक्त 200 बंदों को मिलना और फिर CF होना, उससे मतलब ये इटसेल्फ इज अ बिग आस्क, बट आई लव माय कम्युनिटी, आई लव माय पीपल, और यकीनन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी। और ये मेरे बार्सिलोना के लोगों की शान है, और आप लोगों की मेहमान नवाजी मेरा ख्याल में पूरे यूरोप में आप लोग जैसे मेहमान नहीं हो सकते, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी कम्युनिटी है जो मुझे अभी तक मैंने सर्व किया है, इतने अच्छे मेहमान नवाजी शायद किसी में हो। तो यू मस्ट डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आप अपने लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पाकिस्तानी जिस तरह हमने कहा था कि कोई मसले मसाइल भी क्रिएट करते हैं, हमारे पास एक नौजवान है, प्लीज़ ये अमर हसन जंजुआ, प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। This is a young man, his name is Amar Hassan Jinjua, and he is a champion, Catalan badminton champion under 19. We are proud of him, and he visited me, and of course he needs some sponsorship. We as a consulate, as a government, we will certainly sponsor, but at the same time, please Ahmed Sardar, if you could come here. मेरी कोशिश है कि हम इस तरह के नौजवानों को प्रमोट करें जो आप यकीन करें ये पाकिस्तान के झंडे के साथ खेलना चाहता है, ये पाकिस्तान के शर्ट के साथ खेलना चाहता है, इसके पास एडमिशन की प्लीज। तो ये लड़का पाकिस्तान के शर्ट के साथ खेलना चाहता है, ये पाकिस्तान के फ्लैग के साथ खेलना चाहता है, ही नीडेड स्पॉन्सर्स, उसको मैच फीस वगैरह, वो जो एडमिशन वगैरह,
तो इसके लिए, इसकी कोचिंग के लिए और इसके लिए जो खर्चा है, फिर हमने बात की कम्युनिटी से। अहमद सरदार वाज वेरी काइंड दैट ही एग्रीड दैट जितना भी इसका खर्चा होगा, जितनी भी इसकी स्पॉन्सरशिप होगी, वो अहमद सरदार इसको बेयर करेगा। And we were certainly honored these young men. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Now, आखिर में हमारे दरमियान I will also introduce Hafiz Saab. Please, Hafiz Saab, come on the stage. Hafiz Saab has been a remarkable person. He has been a bridge. He is a communication channel. He has proven his credential on every occasion. So, और इन्होंने हर वक्त पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक बेहतर चेहरा इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश की है, और ख़ासकर ये सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से और गवर्नमेंट में हमारा एक तवाना आवाज़ है, और हम चाहते हैं कि इनकी इन सर्विसेज को हम रिकॉग्नाइज करें। और हमने जो है ना, हाफिज साहब को इस मौके पर एक शील्ड का, स्पेशल शील्ड का देना चाहते हैं। Thank you so much, Hafiz Saab. If you want to say a few words, please. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, ख़ास तौर पर कौंसल जनरल मुराद अली वली साहब आपका, और ख़ास तौर इस घर का कि जिसने हमेशा पाकिस्तानियों को इस धरती में तहफ़्फ़ुज़ दी है, सरपरस्ती की है। और मैं समझता हूँ कि अगर स्टेट साथ ना दे, स्टेट सरपरस्ती ना करे और तामर ना करे, तो कोई भी काम किसी भी जगह पे मुमकिन नहीं होता। बाकी यहाँ पे साथी मौजूद हैं जो मैं समझता हूँ कि मैं या मेरे से बढ़ के भी काम कर रहे हैं। पॉलिटिशियन मौजूद हैं, रफ़ी साहब मौजूद हैं, मोहम्मद इकबाल चौधरी साहब मौजूद हैं, और बहुत सारे साथी मौजूद हैं जो अच्छा फ़र्क कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूँ, मैं समझता हूँ आप सब बड़े हैं, आप सब अच्छे हैं और मेरे से अच्छे हैं, और हम सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए काम करना होगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। We would like to honor, आप इनको बुला लें। We would like to honor our Spanish friends for visiting us, please. जितने हमारे स्पेनिश यहाँ पे बैठे हुए हैं फ्रेंड्स, उनके लिए तो हाय फ्रेंड जैकलीन। Señora Susana. This is something special from our northern areas, Gilgit and Baltistan, and this is absolutely handmade and you will love it. Thank you, my dear. Thank you. Also, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, all the friends of Pakistan. Thank you so much. Señora Paula. Señor Ernesto. Ernesto is the old Pakistani, and we love him for his love and dedication with my community, with the Pakistan. This is another piece of art from Multan. This is a blue art, and this is famous in the Saraiki belt, Multan. So this we have specially for you, so they should not be mixed with the red one. Y tenemos entre nosotros un representante de policía. Señora, perdona, yo me olvido tu nombre.
Francis Kamati. Y señor José Manuel. De Policía Nacional. And that's all for today. Thank you so much. I'm sorry we cannot offer any refreshment because we are being. Thank you. Thank you so much.